A very good morning to you, children. How are you all? So, today we are beginning our English class, and I hope that all the previous chapters which we have done, you have thoroughly understood them. And in your online classes, also, I have cleared your doubts also. So, I hope you are clear with those and you are learning with them also for your exams. So, today is the time when we are going to begin a new chapter, chapter number 5. Crusoe finds a friend. So this story is about Robinson Crusoe. Let us begin. In Robinson Crusoe's time, sea voyages were long and very risky. So we are talking about the time when Robin Crusoe existed. It was long back. बहुत साल पहले जब रॉबिन्सन क्रूसो नाम का सेलर होता था, उस टाइम पे जो सी वॉयजेस मीन्स जर्नीज मेड इनटू द सी, वो जर्नीज बहुत ही ज्यादा लॉन्ग और रिस्की होती थी. वाई दे वर लॉन्ग एंड रिस्की? बिकॉज जैसे आज प्रेजेंट डे की जो हमारी शिप्स हैं विच आर ऑपरेटेड बाय मोटर्स, उस टाइप की शिप्स नहीं थी. शिप्स को खुद ही चलाना पड़ता था, इसलिए जर्नी बहुत लॉन्ग हो जाती थी और रिस्की भी रहती थी बिकॉज दोज बोट्स वर डेलिकेट. वो शिप्स जो हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल या ज्यादा मजबूत नहीं होती थी, इसलिए उनके टूटने का डर ज्यादा रहता था. सो दैट टाइम द जर्नीज वर लॉन्ग एंड रिस्की. और सेलर्स जो हैं वो शिप में व्हेन दे यूज टू गो, अगर कोई तूफान आ जाता था तो उनकी पूरी की पूरी शिप टूट जाती थी और वो कहीं ना कहीं आसपास के आइलैंड पे रेस्ट ले लेते थे या फिर उनको मेनी ऑफ देम डाइड ऑल्सो. नाउ इन दोज डेज ships were not as strong and safe as they are today. तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है why the ships were not safe and why they were not strong also. So journeys were difficult. Now before this chapter begins, there's a small activity for you which you all will be doing on your own. Here is how a ship would have looked in Crusoe's time. So you can see a very clear picture of a ship of olden time. पुराने टाइम पे यूज होने वाली शिप की एक पिक्चर दे रखी है. You can notice there are numbers also. Now, the activities related to these numbers. If you look at below, there are the description of all these parts. So we have to match कि part 1 कौन सा है, 2 कौन सा है. This you will be doing on your own because some thinking is required in that. So let us see what you can do about it. So now we are going to begin with the chapter. This is an extract from the book Robinson Crusoe by Daniel Defoe. So this is an extract means it's a short part. एक बड़ी सी नॉवल, उस नॉवल का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको लिखा है डैनियल डिफो ने. उस नॉवल का एक एक्सट्रैक्ट या एक छोटा सा पार्ट है. Crusoe finds himself on an island after a shipwreck. So Crusoe जो है shipwreck के बाद जब उसकी शिप किसी तूफान में फंस के टूट जाती है, उसके बाद वो अपने आप को एक आइलैंड पे पाता है. और उस आइलैंड पे what was his experience, what did he do there, this is there in this extract. He spends many years alone on that island until one day he saves the life of a local tribesman who becomes his devoted companion. So शिपरेक जब कभी हो जाती है और कोई डिजर्टेड आइलैंड पे, खाली आइलैंड पे जब कोई फंस जाता था पुराने टाइम पे, तो बहुत टाइम तक उनको बचाने कोई नहीं आता था या वो वहां से निकल नहीं पाते थे. तो सेम वॉज द केस विद रॉबिन्सन क्रूसो. ही वॉज स्ट्रक ऑन दैट आइलैंड फॉर मेनी ईयर्स. बहुत सालों तक अकेले ही वो उस आइलैंड पे रहा. उस आइलैंड पे उसने क्या क्या किया, कैसे अपना फूड मैनेज किया, कैसे क्लोथ्स मैनेज की, ये सब आपको पता चल सकता है इफ यू विल रीड दैट कंप्लीट नॉवल. बट हियर वी आर गोइंग टू रीड अ स्मॉल पार्ट जिसमें ये बताया गया है कि एक बार रॉबिन्सन के वहां पे ही मीट्स अ लोकल ट्राइब्समैन. वो किसी डेंजर में होता है तो उस ट्राइब्समैन की लाइफ बचाता है. रॉबिन्सन जब उसकी लाइफ बचाता है तो वो जो था ट्राइब्समैन रॉबिन्सन का बहुत ही अच्छा कंपेनियन, बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है. एंड फाइनली
बोथ ऑफ देम टुगेदर, दोनों मिलकर उस आइलैंड से बच पाते हैं. तो लेट अस रीड ऑन द सेक्शन 1 ऑफ द स्टोरी. I took Friday to my cave and gave him some bread, a bunch of raisins, and a cup of water. I then told him by actions to lie down and sleep on some rice straw and a blanket which I had placed there for him. So he took Friday. Now Robinson ने उस पर्सन की जान बचा ली एंड ही हैज नेम्ड हिम फ्राइडे. उसने उस ट्राइब्समैन को फ्राइडे रखा उसका नाम. देन ही टेक्स फ्राइडे को अपने केव में, जहां रॉबिन्सन बहुत बहुत सालों से रह रहा था, उस केव में वो उसको ले जाता है एंड ही गिव्स हिम सम ब्रेड. रेजिन्स मीन्स, यस, क्या बोलते हैं रेजिन्स को? किशमिश. तो थोड़ी सी किशमिश और एक वाटर का कप उसको पीने के लिए देता है. एंड आफ्टर हैविंग दैट मील, उस मील को खाने के बाद रॉबिन्सन उसको एक्शंस, बिकॉज ट्राइब्समैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज, उसको कुछ बोलना नहीं आता था, या फिर जो लैंग्वेज वो बोल रहा था वो क्रूसो के समझ में नहीं आ रही थी. सो रॉबिन्सन उसको एक्शंस में समझाता है कि नाउ ही शुड रेस्ट फॉर सम टाइम. तो राइस स्ट्रॉ से बना हुआ जो है एक बेड. राइस स्ट्रॉ मीन्स राइस के बचे हुए जो डंडियां होती हैं, जिसको हम घास फूस भी कहते हैं, तो घास फूस से बना हुआ एक बेड जो है उसकी तरफ रॉबिन्सन उसको एक्शन करता है कि यू गो एंड स्लीप ओवर देयर एंड रेस्ट फॉर सम टाइम. व्हेन ही वोक अप ही लुक्ड फॉर मी. आई वॉज आउट मिल्किंग माई गोट्स. आई लेट हिम नो दैट हिज नेम वॉज टू बी फ्राइडे, विच वॉज द डे on which I saved his life. Taking a cup of milk, I drank it, some of it, and moistened my bread in some. I gave Friday a cup of milk. He did the same thing with his bread, showing by signs that he thought it was good. So now, after resting for some time, when Friday woke up, so he searched for Robinson. उसने रॉबिन्सन को ढूंढा और फाइनली रॉबिन्सन जो अपने केव के बाहर बैठकर अपनी काउस को मिल्क कर रहा था, मतलब काउस से गोट से मिल्क निकाल रहा था, तो ही टेल्स दैट ट्राइब्समैन, रॉबिन्सन उस ट्राइब्समैन को बताता है, ऑफ कोर्स विद एक्शंस ओनली, कि तुम्हारा नाम मैंने फ्राइडे रखा है बिकॉज आई सेव्ड यू ऑन फ्राइडे, इसलिए तुम्हारा नाम फ्राइडे है. देन रॉबिन्सन वो जो गोट मिल्क निकालता है, एक कप वो अपने लिए रखता है, एक कप वो फ्राइडे को देता है. एंड फ्राइडे ही फॉलोड व्हाट एवर रॉबिन्सन वाज डूइंग. रॉबिन्सन ने अपनी ब्रेड निकाली, उसको मॉइस्चर मतलब दूध में डिप करके उसको गीला करके खाया, और फ्राइडे ने भी सेम किया. एंड ही टोल्ड ऑल्सो, फ्राइडे ने एक्शंस में रॉबिन्सन को ये बताया भी कि इस तरह खाने से ब्रेड अच्छी लग रही है. I gave him a pair of goat skin trousers, a goat skin coat, and a cap of hare's skin. He was very proud of his clothes, though he hardly knew how to get around in them at first. So, another thing which Robinson did for that tribesman was he gave him the clothes to wear. क्योंकि ट्राइब्समैन इससे पहले ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, एंड एज वी नो कि रॉबिन्सन भी वहां पे बहुत सालों से स्टकअप था, तो ऑब्वियसली वो क्लोथ्स उसने किससे बनाए थे? गोट स्किन से. गोट स्किन से एक ट्राउजर बनाया था, गोट स्किन से कोट बनाया था, एक कैप थी जो हेयर स्किन से बनी थी. वो सब कपड़े उस ट्राइब्समैन को पहनने के लिए देता है. एंड ट्राइब्समैन वॉज वेरी हैप्पी टू गेट दोज क्लोथ्स. हालांकि ट्राइब्समैन को वो कपड़े पहनने आ भी नहीं रहे थे कि कैसे पहनने हैं. रॉबिन्सन हेल्प्ड हिम, but he was very happy to get those clothes. Now, I wondered where I should make a bed for Friday. So now he was thinking, wandering means thinking, कि अब जो है ट्राइब्समैन को उस फ्राइडे को रखने के लिए कहाँ उसके लिए एक स्पेस बनानी चाहिए, क्योंकि अभी तो क्रूसो ने उसको अपना बेड दिया था, बट ऑब्वियसली एट नाइट ऑल्सो उसको सोना है, सब कुछ करना है. सो ही वॉन्टेड टू मेक अ बेड फॉर हिम. I wanted to be kind to him
and yet I wish to feel safe myself. So I made a tent for him in the space between two fences. So Robinson जो था, he wanted to be kind to the tribesmen. ट्राइब्समैन को भी रहने के लिए अच्छी जगह देना चाहता था, बट साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि वो भी सेफ रहे, बिकॉज दे वर लिविंग ऑन अ डिजर्टेड आइलैंड. वहां कोई भी एनिमल, कोई भी कुछ आके उनको मार सकता था. तो ही वांटेड कि वो दोनों ही सेफली रहे. सो दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू मेक अ टेंट. दो फेंसेस, दो जो सिक्योरिटी की फेंस होती है उसके बीच में वो सेफ सा एक टेंट लगा देता है उस ट्राइब्समैन के लिए. दिस टेंट ओपनड बाय डोर इनटू माय यार्ड. और वो टेंट की जो ओपनिंग थी, उसने टेंट का डोर ऐसे रखा था कि वो रॉबिन्सन के केव के एंट्रेंस की तरफ ही खुलता था. द डोर वॉज मेड टू लॉक फ्रॉम इनसाइड एंड आई locked it and took in my ladder every night so that Friday could not reach me. So उस टेंट की सेटिंग जो है वो रॉबिन्सन ने ऐसे की थी कि जो ट्राइब्समैन है उसको हार्म ना कर पाए. दैट इज वाई व्हाट ही डिड, ही अरेंज्ड द डोर इन सच अ वे दैट इट कुड बी लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड. तो व्हाट एवरी नाइट व्हाट रॉबिन्सन यूज्ड टू डू कि उस टेंट के अंदर उस ट्राइब्समैन को घुसा के अंदर बोल के कि यू स्लीप देयर, तो ही यूज टू लॉक दैट डोर, ताकि लॉक खोल के कहीं रात को सोते में वो ट्राइब्समैन रॉबिन्सन के ऊपर कुछ अटैक ना कर दे. बिकॉज आफ्टर ऑल ही वॉज अ ट्राइब्समैन ओनली. तो यू कैन नॉट ट्रस्ट. कोई ट्राइब्समैन है उसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. बेशक वो उसके साथ बहुत नाइसली बिहेव कर रहा था, बट स्टिल रॉबिन्सन हैड अ फीलिंग कि कहीं ये मुझे कुछ अटैक ना करे, मुझे मारे ना. तो टू बी सेफ उसके टेंट में उसने ऐसा प्रोविजन बना दिया कि वो टेंट को खुद ही लॉक करता था और खुद ही खोलता था. Had I known what a true friend he was to me, I should not have wanted to lock him out. So later on only Robinson को ये realize हुआ कि वो ट्राइब्समैन उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया. So that is why I said कि अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि he would have been such a good friend of mine, I would have never locked him. But anyhow, let us see what happened next. After a while, Friday knew English so well that I could talk to him about anything that I wished. So slowly and slowly, जब बहुत दिन हो गए ट्राइब्समैन और फ्राइडे को और रॉबिन्सन को इकट्ठे रहते हुए, तो रॉबिन्सन से जो फ्राइडे था he started speaking English because Robinson used to speak in English. So slowly Friday ने वो लैंग्वेज इतने अच्छे से सीख ली कि वो भी एक्सपर्ट हो गया उसको बोलने में. I told him how I happened to be on this island and how long I had been there and what a hard time I had at first to get food and to make a home and how lonely I had been until he came. So slowly and slowly when Friday could understand Robinson's language, जब Friday को Robinson की लैंग्वेज समझ आने लगी तो Robinson उससे बहुत सारी बातें शेयर करने लगा. उसने उसको एक्सप्लेन किया कि वो कब से उस आइलैंड पे है, हाउ ही रीच देयर, वो कैसे पहुंचा, और इनिशियली शुरू में जब वो इस आइलैंड पे था तो उसने फूड गैदर करना या फूड बनाना कैसे सीखा और कितना टाइम लग गया उसको अकेले रहते रहते until Friday came and now Friday has become his good friend. So Robinson ने अपनी पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो फ्राइडे को बता दी, क्योंकि अब फ्राइडे उसी की लैंग्वेज बोल भी पा रहा था और समझ भी पा रहा था. I also taught him how to plant and harvest wheat and rice and how to make baskets and dishes. He milked the goats every morning and evening and made butter and cheese. So slowly and slowly Friday learned so many things. रॉबिन्सन ने उसको वीट और राइस उगाना कैसे उगाते हैं वो सिखा दिया. ही ऑल्सो ट्रेन्ड हिम टू मेक बास्केट्स और डिशेस, बिकॉज बहुत सालों से रॉबिन्सन उस आइलैंड पे था, कोई उसके साथ नहीं था, तो ही हैड मेड ऑल द थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. लीव्स को यूज करके वो अपने लिए डिशेस और बास्केट्स बनाता था. खाना भी उसने खुद ही उगाना सीखा.
धीरे धीरे उसने सब कुछ मैनेज किया और अब उसने वो सारे के सारे काम फ्राइडे को भी सिखा दिए. फ्राइडे को गोट्स को मिल्क करना भी सिखा दिया. सो एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फ्राइडे यूज टू मिल्क द गोट्स और फिर उस मिल्क को यूज करके वो लोग बटर एंड चीज भी बनाते थे. So over and all means after living there for so many years, Robinson had become so expert कि वो अपने लिए proper wheat, rice, butter, cheese सब खाना arrange कर पाया था and that is why he was able to live over there. So I hope you have understood section 1 of the story. We'll continue with section 2 in the next part and till then whatever I have taught you, read it properly, go through it 2-3 times, you read it, and still if you have difficulty in any of the words you can ask in the online class. Till then, have a nice day.